پاکستان میں معاشی اصلاحات ہو رہی تھی کہ کورونا آ گیا. کورونا سے 2.5 کروڑ خاندان بے روزگار ہو گئے. وزیر اعظم عمران خان کا ورلڈ اکنامک فورم سے ویڈیو لنک خطاب. کہا کورونا کے باعث اقدامات نے غریب طبقے کو متاثر کیا. پاکستان میں 1.5 کروڑ خاندانوں کی مالی امداد کی گئی. وزیر اعظم نے کہا G20 ممالک نے قرضوں میں آسانی کی پالیسی اختیار کی. ترقی پذیر ممالک قرضوں کی وجہ سے مشکلات میں ہیں. کورونا کے وار تیز. پاکستان میں ایک دن میں ریکارڈ 46 اموات. ملک بھر میں اب تک 985 افراد جاں بحق ہو چکے. 24 گھنٹوں میں مزید 1932 کیسز رپورٹ. 45,898 افراد مہلک مرض کا شکار. کورونا وائرس کی شکار پاکستان تحریک انصاف کے رکن پنجاب اسمبلی بیگم شاہین رضا لاہور میں انتقال کر گئی. وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا اظہار. کہا مرحومہ کی پارٹی کے لیے خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. سندھ میں کورونا کے ریکارڈ کیسز. 24 گھنٹے میں 1000 سے زائد کیسز رپورٹ. مزید 17 افراد انتقال کر گئے. وزیر اعلیٰ سندھ کو تشویش. کہا صوبے میں اب تک 316 افراد زندگی ہار چکے ہیں. 127 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. مراد علی شاہ کی ایک بار پھر عوام کو احتیاط برتنے کی اپیل. اب ڈاکٹرز کی خدمات اور علاج کے لیے مشورے ملیں گے گھر بیٹھے. حکومت نے ٹیلی ہیلتھ پورٹل کا اجرا کر دیا. وزیر اعظم کہتے ہیں جب تک ویکسین نہیں آ جاتی ہمیں کورونا کے ساتھ ہی گزارا کرنا ہوگا. ماضی میں ہیلتھ پر توجہ نہیں دی گئی جس کی وجہ سے ہیلتھ چیلنج ہمارے لیے مزید بڑھ گیا ہے. 55 دن بعد ٹرینیں پھر ٹریک پر دوڑ پڑی. کراچی، لاہور، راولپنڈی، پشاور اور کوئٹہ سے ٹرینیں مسافروں کو لے کر منزلوں کی جانب رواں رواں. آپریشن کی جزوی بحالی کے لیے ریلوے اسٹیشنز پر بھرپور صفائیاں. جراثیم کش اسپرے ہوئے. سینیٹائزر گیٹ نصب کیے گئے. ریلوے حکام کا مسافروں کو SOPs پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت. عید اپنے پیاروں کے ساتھ منانے والوں کے لیے خوشخبری. پنجاب میں پبلک ٹرانسپورٹ بحال. صوبائی حکومت اور ٹرانسپورٹرز کے درمیان مذاکرات کامیاب. ٹرانسپورٹرز کہتے ہیں SOPs پر عمل کریں گے. کوشش کریں گے کہ تمام گاڑیاں GT روڈ پر چلائیں. موٹر وے پر چلنے والی گاڑیوں میں ایک سیٹ خالی چھوڑی جائے گی. عید کے پیش نظر ٹرانسپورٹ چلانے کی اجازت دی. ٹرانسپورٹرز کو SOPs کا خیال رکھنا ہوگا. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان گزار نے واضح کر دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے LD انصاف ویب پورٹل اور موبائل پورٹل بھی لانچ کر دیا. عثمان گزار سے وزیر محنت انصر مجید کی بھی ملاقات. ملازمین کی طرف سے کورونا ریلیف فنڈ میں 32 لاکھ روپے کا چیک پیش کیا. سندھ حکومت نے SOPs کے ساتھ نماز عید اور جمعۃ الوداع کی اجازت دے دی. صوبائی وزراء کی کراچی میں پریس کانفرنس. کہا کورونا کے مسئلے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. SOPs کا خیال سب نے رکھنا ہوگا. ملک میں کورونا وائرس کا پھیلاؤ جاری مگر عوام غیر سنجیدہ. حکومتی ہدایات اور احکامات نظر انداز. مارکیٹوں میں بلا کرٹ. ماسک تو دور سماجی دوری کا اصول بھی کوئی اپنانے کو تیار نہیں. صورتحال خطرناک. لاک ڈاؤن ناگزیر. آج نیوز پر باران رحمت ٹرانسمیشن کے پاکستان سیگمنٹ میں گفتگو میں وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا کہ کورونا ابھی ختم نہیں ہوا مگر وزیر اعظم کی حکمت عملی کے باعث زیادہ نقصان بھی نہیں ہوا. وزیر صحت پنجاب کی عوام سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل. ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی بولے تاجر اور عوام SOPs کا خیال رکھیں. پاکستان میں کورونا مریضوں کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے. یہ وائرس حکومت کی ذمہ داریوں پر اضافی بوجھ ہے. عوام کا حق ہے کہ حکومت انہیں صاف اور صحت مند ماحول فراہم کرے. سپریم کورٹ نے کورونا اسقاط نوٹس کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. قرار دیا وفاق کے پاس ایگزیکٹو اختیارات ہیں اس لیے صوبے احترام کرتے ہوئے عمل درآمد یقینی بنائیں. ملک میں افراط زر میں نمایاں کمی آئی ہے. رمضان کے بعد افراط زر 6% تک بھی آ سکتا ہے. سابق وزیر خزانہ حفیظ پاشا کی پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو. کہا IMF 800 ارب کے اضافی ٹیکسز کا مطالبہ کر رہا ہے.
अगर ऐसा हुआ तो मईशत खत्म हो जाएगी, सांस लेने की भी गुंजाइश नहीं बचेगी। साबिक वजीर खजाना ने मुल्क में बेरोजगारी बढ़ने के खदशे का भी इजहार कर दिया। सिंध में कल से टाइगर फोर्स होगी इन एक्शन। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल लीड करेंगे। मुआविन खुसूसी उस्मान डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध हुकूमत पहले दिन से टाइगर फोर्स पर सियासत कर रही है। समझ नहीं आता उनका दोहरा मयार क्यों है। नासिर शाह का रद्द अमल। कहा, विफाक ने करना कराना कुछ नहीं, हमें टाइगर फोर्स के नाम पर एतराज है। सिंध असेंबली का इजलास मुलतवी क्यों किया? अपोजिशन जमातों का एहतजाज। सीढ़ियों पर अपनी ही असेंबली लगा ली। पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ करारदाद मजम्मत मंजूर। वजीर आला और स्पीकर से इस्तीफे का मुतालबा भी किया। मुर्तजा वहाब का रद्द अमल। कहा, तहरीक इंसाफ कानून की सरबुलंदी की बात करती थी, हुकूमत में आकर ये सब भूल गए। हमने एसओपीज पर अमल करके ही कोरोना को शिकस्त देनी है। पहले सख्तियां भी भलाई के लिए थीं, अब नरमियां भी भलाई के लिए है। अवाम और ताजिर एसओपीज पर अमल करेंगे तो महफूज रहेंगे। मुशीर इत्तलाफ खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर की ब्रीफिंग। सूबाई वजीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा बोले, समाजी फासला इस वक्त बड़ा चैलेंज है। टिड्डी दल के खात्मे के लिए हुकूमत पुरअज़्म। वफाकी वजीर फखर इमाम कहते हैं, फसलों को बचाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। चेयरमैन एनडीएमए ने बताया कि हमारे पास 5 जहाज छिड़काव के लिए तैयार हैं। स्प्रे किट बनाने के लिए काम कर रहे हैं। कराची में गर्मी की शिद्दत और हब्स बरकरार। पारा आज भी 39 डिग्री को छू गया। अवाम का गर्मी से हाल बेहाल। अंदरून सिंध में भी सूरज सवा नेज़े पर आ गया। भारत और बांग्लादेश में समंदरी तूफान का अलर्ट जारी। इम्फान नामी तूफान आज रात भारत की मशरकी रियासतों और बांग्लादेश के जनूबी मगरबी साहिल से टकराएगा। साहिली इलाकों से शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकली शुरू। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल। और माह रमजान में आज न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन बाराने रहमत जारी। रीमा और फरहान अली वारिस की मेजबानी सबको भा गई। उलमाए कराम ने लैलतुल क़द्र की फजीलत और अहमियत पर रोशनी डाली। 2.5 करोड़ खानदान बेरोजगार हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से वीडियो लिंक खिताब। कहा, कोरोना के बाइस इक़दामात ने गरीब तबके को मुतासिर किया। पाकिस्तान में 1.5 करोड़ खानदानों की माली इमदाद की गई। वज़ीर आज़म ने कहा, G20 ममालिक ने कर्जों में आसानी की पॉलिसी इख्तियार की। तरक्की पजीर ममालिक कर्जों की वजह से मुश्किलात में हैं। In Pakistan, we have 25 million workers who are either daily wages or get paid weekly or are self-employed. So when we locked down like the whole of the world to stop the spread of the virus, all these people became unemployed. And when you're talking about 25 million workers, you're talking about 25 million families. And actually it has affected round about almost 120, 150 million people. And these 120 and 50 million people face stark poverty. Unless the men or the women who were working, unless they work, they cannot feed their families. लॉकडाउन में नरमी होते ही कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। वायरस का शिकार होकर सिर्फ एक दिन में 46 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वालों की तादाद बढ़कर 985 हो गई। 1932 केसेस सामने आ गए और मुतासरीन की तादाद 45,898 हो गई। सिंध में 17,947, पंजाब में 16,685, खैबर पख्तूनख्वा में 6,554,
बलूचिस्तान में 2885, इस्लामाबाद में 1138, गिलगित बल्तिस्तान में 556 और आजाद कश्मीर में केसेस की तादाद 133 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 13,962 टेस्ट किए गए। अब तक 13,100 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। कोरोना वायरस की शिकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने पंजाब असम्बली बेगम शाहीन रजा लाहौर में इंतकाल कर गई। डॉक्टर्स के मुताबिक मरहुमा की हालत तशवीशनाक थी। वो ब्लड प्रेशर और शुगर की भी मरीजा थी। बेगम शाहीन रजा लाहौर के मेयो अस्पताल में जेर इलाज थीं। अस्पताल के सीईओ प्रोफेसर असद असलम के मुताबिक बेगम शाहीन को 3 रोज कबल 17 मई को जब अस्पताल लाया गया तो इनकी हालत तशवीशनाक थी। बेगम शाहीन को ब्लड प्रेशर और शुगर का आर्जा भी लाहक था। अस्पताल इंतजामिया ने SOPs के मुताबिक मरहुमा की मैयत को गुस्ल के बाद ताबूत में मुंतकिल किया। पुलिस की जेर निगरानी मैयत को गुजरांवाला ले जाया गया, जहां SOPs के तहत इनकी तदफीन कर दी गई। जराए के मुताबिक मरहुमा ने अपने आबाई इलाके गुजरांवाला में कोरोना से बचाव की भरपूर मुहिम चलाई और वो मुस्तहिक अफराद में इमदादी रकूम और राशन भी तकसीम करती रहीं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सूबे में 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 1017 केसेस सामने आए हैं। कोरोना के बाइस मजीद 17 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सूबे में वायरस से जाबाहक अफराद की तादाद 316 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटे में 6164 टेस्ट किए गए। 1017 नए केसेस सामने आए हैं जो रिकॉर्ड है। सिंध में इस वक्त 127 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना के मुतासिरा 32 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। वज़ीर आला सिंध ने बताया कि सिंध में अब तक 1,37,540 टेस्ट किए गए, जिसमें से 18,964 केसेस सामने आए। और अब आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने SOPs के साथ नमाज ईद और जुम्मतुल विदा की इजाज़त दे दी है। सिंध के सूबाई कॉन्फ्रेंस सईद गनी ने कहा कि ईद के इज्तिमात और ख़त्मुल कुरान समेत शब कदर में इबादत होंगी, लेकिन तमाम इज्तिमात में SOPs पर अमल दरामद करना लाजमी होगा। नमाज है या दीगर नमाजें हैं या तरावियाँ हैं, वो उन्हीं SOPs के मुताबिक अदा की जाएंगी। जो नमाज ईद है उसके लिए बड़ी खुली जगहें हैं, ग्राउंड्स हैं, पार्क्स हैं, बड़े प्लॉट्स हैं। तरजीही बुनियादों पर उन मकामात पर नमाजें होंगी और निशानात पहले से लगा दिए जाएंगे कि कहाँ कहाँ नमाजी खड़ा होगा और फासले से खड़ा होगा। और एक जगह अगर नमाजियों की तादाद ज्यादा है तो 1 से ज़ायद मरतबा ईद उल फितर की नमाज एक ही जगह पर अदा की जाएगी। कहीं पर 2 मरतबा भी हो सकती है, कहीं पर 3 मरतबा भी हो सकती है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि कोरोना के बाइस मुल्क पर मुश्किल वक्त है। वैक्सीन आने तक कोरोना के साथ गुजारा करना होगा। बदकिस्मती से हमने हेल्थ शोबे पर तवज्जो नहीं दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने टेली हेल्थ पोर्टल का इजरा कर दिया। कोरोना वायरस से निपटने के लिए टेली हेल्थ पोर्टल का इजरा। वजीर आज़म इमरान खान ने तकरीब से खिताब में कहा, इस टेक्नोलॉजी से हम अब दूर दराज इलाकों तक पहुँच सकते हैं। टेली हेल्थ की जरूरत हमें कोरोना के बाद भी रहेगी। आप घर बैठे बैठे वो काम कर सकती हैं, लोगों की मदद कर सकती हैं इस मुश्किल वक्त में, जो कि दूर दराज इलाके में रहते हैं, जो कि ऐसे इलाकों में जिधर अस्पताल नहीं है, एक्सेस नहीं है हेल्थ सर्विसेज का। इंशाल्लाह जब ये कोरोना वायरस का ये ख़त्म भी होगी तो तब भी हमें इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ेगी। वजीर आजम ने कहा, कोरोना का असल हल वैक्सीन है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में हेल्थ के शोबे पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। असल में तो इसका हाल एक वैक्सीन है, तो जब तक वैक्सीन नहीं है हमने इस वायरस के साथ गुजारा करना है। हमारे मुल्क में बदकिस्मती से हमने इतना अपना तवज्जो भी नहीं दी अपनी हेल्थ शोबे के अंदर, अपने हॉस्पिटल्स में, अपनी हेल्थ सर्विसेज में, तो हमारे लिए ज़्यादा बड़ा चैलेंज है। वजीर आजम का कहना था कि पाकिस्तान में दीगर ममालिक के मुकाबले में कोरोना ने कम असर दिखाया। 55 दिन बाद ट्रेन का पहिया दोबारा चल पड़ा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर और कोयटा से ट्रेनें मुसाफिरों को लेकर रवाना हुई। रेलवे स्टेशन पर भरपूर सफाइयाँ की गई। जरासीम कुश स्प्रे और सैनिटाइजर गेट नस्ब कर दिए गए। रेलवे हुक्काम ने मुसाफिर